کرنا چاہیے کہ آج ہم یسوع کا کیا کھانے والے ہیں؟ ہاں جی بھائی پیچھے کیا جی بولے جی، سب پیچھے بولے، بہنیں نہیں بول رہی، کیا کھانے والے باجی جی؟ آگے سے نہیں پیچھے، میں نے کہا بولے، پیچھے سے بولے باجی سے گفتہ ہی پیچھے گی، اور کوئی نہیں پیچھے گا، سب بولے ایک بات میں کہیں کیا کھانے والے ہیں اور پینے والے کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر دنیا کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی اہم ایک بات ہو جاتی ہے، کسی بندے کا خون یا بدن کھانا یا پینا ایک علیحدہ سی سے، لیکن یسوع سے اپنا بدن کھانے کے لیے اور اپنا خون پینے کے لیے کیوں ہمیں دیا؟ اس کی پاکیزگی کو سمجھے۔ پیچھے نے کلام سنا کہ اپنے ساتھ اپنا اتحاد لے کر آئے تاکہ ہم جنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ تو میرا جہاں تک مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جھوٹ نہیں سب نے بولنا۔ کتنے لوگ جن کے گھر میں خدا کا کلام پڑھا ہوا ہے؟ اپنا ہاتھ سچے سے دکھاؤ۔ تو کتنے لوگ نے کراچی جیسے اتھوں لے کے گئے نے کلام تو ایک نال کیوں نہیں لاتے؟ وجہ یہ بھی دسو، نال کیوں نہیں لا کے آتے؟ یاد نہیں رہتا، کیونکہ یسوع دا خون پینا ہے تو یسوع دا گوشت کھانا ہے۔ سچ بولو کیوں نہیں لاتے؟ بھی سچ بولو، جب بولو صحیح بولو، کوئی نہ کچھ کہو، کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ شیطان سارے پیچھے چڑھیا ہے۔ شیطان کہتا ہے ایتھوں لو تے اگے دو، اگے دو سارے کو رہے یا نہ رہے، کار پیار رہے، وہ تے چادر پائی ہے، کپڑا پایا ہے، شارٹ پایا ہے، اوتھے پیا ہے، کدی پڑھنا نہیں تے نہ پڑھیا کدی۔ جہے گھر سے کلام پڑھیا جاتا اوتھے خدا دا منہ کھل جاتا، اوتھے خدا دا جلال آ جاتا ہے۔ تے جس گھر سے خدا دا جلال ہوئے اس گھر سے کمی نہیں کی آ سکتی، مہنگائی کنی بھی ہو جائے۔ تے جہے لوگ کہتے ہیں نا مہنگائی ہے، وہ سمجھ لو کہ شدائی ہے، وہ شدائی نے۔ مہنگائی بڑی ہے پر انہوں یہ نہ سمجھو کہ مہنگائی ہے، پر یہ سمجھو کہ ساڈا خدا جڑا بادشاہ دا بادشاہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ اپنے منن والوں کدی بھوکا نہیں سناتے ہیں۔ ہاللویا، تلاوت سنیں میں سبحان اللہ اخلی کی کہوں۔ ایک بڑی آیت، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، سامنے سنیں گے۔ مقدس بزرگ متی رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی ہاں جی اس کی 6ویں ہے جی، سنیں بڑا غور سے۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام سے پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 6ویں ایسے پڑھنا شروع کروں۔ اور جب یسوع بیت آنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگے مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس کے سر پر ڈالا۔ شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا کہ اس عورت کو کیوں دگ کرتے ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکر یہودی تھا، سردار کہنوں کے پاس جا کر
کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ خدا کے کلام پڑھے سنے جانے کے مسئلہ سے خدا صاحب کو برکت دے۔ سب کہیں آمین، سب کہیں آمین، کہیں آمین، ہاللویا۔ یسوع کے کلام کے لیے زوردار کلابی۔ سب تشریف رکھیں، بڑی خاموشی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، اور خاص کر جو بچہ باتیں کرتا ہے اس کے سر پر چپیڑ مار دیں کہ وہ ایسا بات نہ کریں۔ جو بچوں کے پاس بیٹھا ہے ان کو روکیں۔ سنیں بڑے غور سے، ابھی آپ نے ایک عورت کے متعلق سنا۔ یہ عورت بدنام زمانہ تھی، اور یہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ جب یہ یسوع مسیح کے پاس آتی ہے تو کیا لے کر آتی ہے؟ کیا لے کر آتی ہے؟ خوشبو، قیمتی عطر لے کر آتی ہے، جو آج کے روپے پیسے کے مطابق وہ کروڑوں کے حساب سے تھا۔ 10 کروڑ کے قریب ہو سکتا ہے، 5 کروڑ کے قریب ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی رقم آج کے دور میں بنتی ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ یسوع کھانا کھانے کسی گھر میں انوائٹ تھا، کھانے کی دعوت تھی، کھانا کھانے بیٹھا ہے۔ شمعون کوڑی کے گھر میں تھا۔ شمعون جو کوڑ کا بھرا ہوا تھا، اس کو خداوند یسوع مسیح نے شفا دی۔ اس نے اپنے گھر انوائٹ کیا دعوت کی کھانے کے لیے۔ تو اس عورت کو پتہ چلا، اور جب یہ وہاں پر جاتی ہے تو جا کر کیا کرتی ہے؟ اپنے ہاتھ میں کیا لے کر جاتی ہے؟ عطر، اور تھوڑا سا نہیں، پوری ایک بوتل لے کر جاتی ہے، اور جا کر یسوع کے سر پر ڈال دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر پر کیوں ڈالا؟ وہ اس کے پاؤں پر بھی ڈال سکتی تھی، اس کے جسم پر بھی۔ جب ہم خوشبو لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سر پر تو نہیں لگاتے، ہم اپنے ہاتھوں پہ لگاتے ہیں یا بدن پہ لگاتے ہیں۔ لیکن اس نے اپنے سر پر کیوں، یسوع کے سر پر کیوں ڈالا؟ بولے، جب کوئی دوسرا خادم آپ کو سوال کرتا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بہت ساری باتیں سکھائی ہیں، لیکن آپ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج یہ فسان کھانے والے ہیں، اس کی قدر کریں، اس کو جانیں، کلام کو پہچانیں۔ تمام میرے ساتھ جتنی ٹیم ہے کام کرنے والی سے سوچیں کہ ہم نے بہت سارا کلام سنا، عمریں بیت گئی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں کلام کا پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں اس عورت نے، مریم مغدلینی نے، کیوں یسوع کے سر پر تیل ڈالا؟ اس طرح کی گلا بڑی کر لیں، اسی کلا کی گلا کر لیں، کبھی کلام کے بولنے، کبھی کچھ کر لیں۔ آئے بچو، ایجو تسی دسو، تسی بڑی دو گلا کرتے ہیں، سلامی تو دسو، انہیں تو بولو جی۔ اس کا مطلب یہ سنے، آج اس وقت اسرائیل کے آج بھی روایت ہے، جس کے ساتھ کسی کا رشتہ ہوتا تھا نا، جو دلہن ہوتی تھی وہ اپنے دلہا کو عطر سے اس کے سر کو بھگوتی ہے، تیل سے، جس کا خوشبودار چیز ہے۔ مریم مغدلی نے اسے اپنا دولہا مان لیا۔ دولہا ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم آج یسوع کی دلہن ہیں، اسی طرح وہ بھی اسی کی دلہن ہے۔ دنیا کی رسموں کے مطابق نہیں، روحانی طور پر اس نے اپنے اس کو دولہا مان لیا، باپ مان لیا، اپنا نجات دہندہ مان لیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہی نجات دہندہ ہے۔ اس نے یسوع کو پہچان لیا، اس نے یسوع کو جان لیا کہ یہی میرا مالک ہے، یہی مجھے بچائے گا۔ تو لوگوں نے جب اس کے سر پر تیل ڈالا، یہودی لوگ اس بات سے اس لیے غصہ ہو گئے تھے کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں نے ابھی اسے نہیں پتا کسی نے میرے سر پر تیل ڈال دیا ہے، اب اس نے اپنا شوہر سے مان لیا ہے۔ اس بات سے وہ ناراض ہو چکے تھے، وہ یسوع کے ساتھ الگ ہو گئے تھے۔ تو یسوع نے اس سے کہا
उन लोगों से कहा कि अक्लों को मालूम करके क्यों इस औरत को तुम दाग करते हो, क्यों इसको बुरा समझते हो? इसने कोई बुराई नहीं की, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, जब चाहो तुम उनकी खिदमत कर सकते हो, जब चाहो तुम गरीबों की खिदमत कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूं। लिखा है यीशु ने ये जानकर उनसे कहा, इस औरत को दाग करते हो इसलिए इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए किया है। क्या किया है उसने? मेरे दफन की तैयारी के लिए सब कुछ किया है। जब मुर्दे को हम दफनाते हैं, तफीन करते हैं, तो क्या करते हैं? खुशबूदार चीजें साथ लेकर जाते हैं। उसके दफन करने के बाद फूल पत्तियां डालते हैं, फिर अगरबत्तियां लगाते हैं, खुशबूदार चीजें लगाते हैं। तो इसी तरह अब यीशु मसीह को इस दुनिया से जाना था, अब यीशु मसीह पर अजियत आनी थी। इसके साथ एक उसका शागिर्द जो था, यहूदा अस्कर यहूदी, जो बिल्कुल उसके करीब था, बिल्कुल उसके करीब था, वो खजानची था। उसे यह पता था कि यीशु मसीह जमीन का बादशाह होगा। उसी लालच से यीशु के पास आया, तो यीशु से खजानची भी बना दिया। हो सकता वो पैसे भी चुराता हो, हदी नजारे से पैसे गायब करता हो, लेकिन उसके अंदर लालच था, वो लालची था। जब उससे मालूम हुआ कि ये तो अब मरने वाला है, इसको अब पकड़ लिया, कत्ल किया जाएगा, वो शरा के आलमों के पास जाता है। वो 30 रुपये उनसे लेकर यीशु को बेच देता है। यहाँ पर दो मसले नजर आते हैं। एक औरत जिसने यीशु को अपना दूल्हा मान लिया, अपना नजात दहिंदा मान लिया, और उसकी खिदमत की, उसके कदमों में झुककर उसे सजदा किया, उसके पाँव को चूमा, अपने आंसुओं से उसके पाँव को धो दिया, और यीशु के साथ भलाई की। और उसके हवारी ने, उसके शागिर्द ने यीशु की कीमत ले ली, यीशु की कीमत ले ली। कितने पैसे लिए उसने? कितने पैसे लिए भाई जी? जो भाई शादी कितने पैसे लिए? बोलिया करो, सारे बोलिया करो, मैं बुतान कलाम नहीं सुना रहा, बोलते नहीं बोलते, जो जानता है वो बोलते हैं। कितने पैसे लिए जी? 30 रुपये। और मरियम मगदलीनी ने क्या किया? सर में तेल डाला, आंसुओं से आपने उसके पाँव धो दिए, और अपनी जीनत जनी के अपने बालों से उसके पाँव को साफ किया। उसने भलाई की। लेकिन यहूदा अस्कर यहूदी जो उसके साथ रहता था, उसने क्या किया? यीशु को बेच दिया। अब यीशु मसीह क्या करेगा? सुने, इसकी 17 में लिखा है, और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। अब यहाँ पर एक शहर में जाते हैं, और वहाँ पर जिसको कोई भी नहीं जानता, जाकर यीशु की शागिर्द उससे कहते हैं कि उस्ताद ने भेजा है, कि उस्ताद का वक्त नज़दीक है, अब हमें जगह दें कि हम कहाँ बैठ कर फसा की तैयारी करें। वो एक ऐसा बरामदा दिखाता है, वहाँ पर बैठते हैं, फसा की तैयारी करते हैं, और 12 शागिर्द उसके पास आकर बैठ जाते हैं, और यीशु मसीह उनके साथ फसा का आखिरी खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो कहता है, एक ऐसा वाक़या उसी फसा के अंदर होता है कि जो तबाक होता है, जैसे एक बर्तन होता है, उसके अंदर आज भी लोग क्या करते हैं, एक टिक्की लेते हैं और उसको शायरबानी में असल बोलते हैं, और ये यहूदा अस्कर यहूदी की रस्म है। ये ऐसे जो डबोते हैं, यहूदा अस्कर यहूदी ने डबोई, और यीशु ने कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा।
सुन लीजिए। और ऐसे डिनोमिनेशन है जो ऐसी रस्म करते हैं, मुफस्सा को क्या करते हैं, टिक्की को डुबोते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, फिर दूसरी टिक्कियाँ बांट देते हैं और शीरा खुद पी जाते हैं। ये यहूदा अस्कर यहूदी की रस्म है। यीशु की रस्म जो है वो कहता है कि ये मेरा बदन है, लो खाओ, इसमें हमेशा की जिंदगी है। फिर उसने प्याला लिया, प्याला दिया, उसने कहा लो आपस में बांट लो, ये मेरा अहद का खून है। यीशु ने ये रस्म अदा की। लेकिन यहूदा अस्कर यहूदी ने तबाक में हाथ डालकर भगोकर उसे खाया। उस यीशु से कहा यही मुझे पकड़ाएगा। तो उसने कहा क्या स्वाब मैं हूं? तो यीशु कहता तूने खुद कह दिया तू ही है। जब यीशु मसीह गतसेमनी बाग में जाता है तो वहां पर जाता है, दुआ के लिए झुकता है, अपने शरीरों को एक जगह पर फैलाता है कि तुम भी जागते रहो और दुआ करो। यीशु उनसे थोड़ा आगे जाकर दुआ करता है, गमगीनी की हालत में है, जान करनी की हालत में है, और उसका खून पसीना जो है खून की बूंदे पर का गिरता है। इतना वो परेशान है। किसकी वजह से? इसलिए वो परेशान नहीं था कि मुझे आज कत्ल कर देंगे, आज मुझे पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। ये तो सब कुछ उसके साथ होना था। वो इसलिए परेशान था कि यहूदा अस्कर यहूदी ने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है। और वो कहता कि अगर ये पैदा ही ना होता तो इसके लिए अच्छा था। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं थे, उनके लिए वो परेशान था, गुनाहगार की जिंदगी के लिए परेशान था। ये इसलिए वो परेशान गमगीन नहीं था कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो इसीलिए आया था कुर्बानी देने के लिए। रोज़े अजीम से ज़िबा किया बर्रा हमारे गुनाहों को उठा कर लिया जाता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बढ़ के हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने बख्शा है ये बेटा, खुदा ने इस दुनिया में भेजा है। अब्राहम की कुर्बानी के दिन देखें कि जब वो इसहाक को लेकर जाता है तो क्या वहां पर इसहाक कुर्बान होता है? हरगिज़ नहीं। अब्राहम को रोका जाता है, कहता है वो बड़ा देख जो झाड़ियों के अंदर है, उसे पकड़, उसे ज़बह कर। वो कौन था? वो यीशु मसीह था, खुदा का इकलौता बेटा था। आदम के लिए कुर्बान हुआ, अब्राहम इसहाक के लिए कुर्बान हुआ। आज मेरे और आपकी नजात के लिए यीशु कुर्बान हो चुका है। आज वो खून, वो बदन जो कुर्बान सलीब पर हुआ है, वो आपके खाने के लिए, पीने के लिए। क्या आप में कोई ऐसी है, कोई ऐसा शख्स है जो यीशु के साथ भलाई करेगा? क्या हम खुदा को क्या समझते हैं? एक छोटा सा बच्चा, छोटा जिना बच्चा समझने वाले वो भी नहीं समझते, वो थोड़ा थले समझते, खुदा को इज्जत नहीं देते। खुदा की इज्जत बादशाह के बादशाह ने बनी। खुदा की इज्जत छोटी जी नहीं। एक जमीनी बादशाह आ जाए और कानून पास कर दे तो असी वो मानने, भावें किन्नी खापा करिए, बिल आने ना, बिल अदा करने पे ना, जे ना करेंगे तो कट के लै जाएंगे। तो खुदा जिन्हें सानू बनाया में, जिन्हें सानू दम दिता है, रूह दी है, जिन्हें सानू जिंदगी दी है, औलाद दी है, कार दिता है, तो किसी अपने बच्चों ने छोटा समझे, अपने बच्चों ने भी कोई कदर नहीं करते, कोई कदर नहीं। वो हकीर और मरदूद और गमना का हाशना बना, हमने उसकी कुछ कदर न जानी। ये साया कहता है कि हमने कुछ कदर न जानी, हालांकि वो मेरे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ। क्या खुदा आज इतना ही छोटा हो चुका है? कोई उसके साथ भलाई करने के लिए तैयार नहीं? क्या कोई उसकी कदर नहीं करता? क्या आपके पास कुछ नहीं है कि आप उसके लिए बड़े काम कर सकें? ब्याह शादी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे उठाकर भी कर लेते हैं। लेकिन पिछली जब नदीम साहब ने कलाम सुनाया था, उसने कहा जी खुदा देगा तो असी करांगे, खुदा तो हर रोज़ ही देता है। केड़ा बंदा जो भुखा सौंदा रात को, सारी खा के सौंदे ने, रात को खा के सौंदे ने, सुबह फिर भुख लगती, फिर खुदा देता। कोई रस खाता है, कोई चाह खाता है, पींदा है, कोई परौंठे खाता है, कोई कुछ खाता है। ये कौन देता है? खुदा देता है। तो जो खुदा को देने की वारी आती है तो
घुट के 10 रुपए वो मैले कचैले नप के देने पर खुदा तू दिला ऐ तेरी कदर हुई है। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो कीमती अतर यीशु मसीह पर डाला गया था ये आज करोड़ों की कीमत का है। तो शरा क्या क्यों जाया किया गया? क्यों असी पैसा जाया कर रहे हैं? होर कामां वास्ते क्यों जाया कर रहे हैं? खुदा ਲਈ करो, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे का बदन भी तल देता है, खून भी तल देता है। खाओ तो जिंदगी पाओ, पियो तो हमेशा की जिंदगी पाओ। कदर करो यीशु मसीह, बेकदरी नहीं करनी। एक ऐसी औरत जो सारी नकामा समझते सन, उन्हें सब ना चंगा काम कर दिता तो यीशु अपना नजात देंदा मान लिया। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। क्या कोई आज ऐसा है शख्स? क्या कोई आज ऐसा काम करेगा? कोई नहीं कर सकता। हम तो अपने घर से बाइबल नहीं लाते तो यीशु के पाँव कब धोएं? हमारे हाथों में बाइबल नहीं होती, घर में पढ़ी होती है, बच्चे पढ़े लिखे भी हैं। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो अपने साथ बाइबल ज़रूर रखें, ज़रूर लेकर आए ताकि आपके हाथ में बाइबल हो और आपको पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक जगह ऐसे मुकाम पर जाओ जहाँ मुझे यीशु मिलेगा। हालेलुया। जिसका कलाम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए, तेरे कलाम पर मुझे इत्मीनान है। तेरा कलाम मेरी नजात है, उजाला है। अगर हमारे पास कलाम नहीं है, ये ऐसे बुक ना समझे कि खुदा की आवाज़ है। इसको साथ लेके जाएं, जहाँ जाएं मोबाइल छोड़ दें, बाइबल साथ लेकर जाएं। असी मोबाइल भूल जाने का पर बाइबल नहीं लेकर, बाइबल भूल जाने बाइबल मोबाइल साथ सॉरी बाइबल मोबाइल साथ लेकर जाते हैं, मोबाइल साथ लेकर जाते हैं, बाइबल नहीं जाते। और बड़ा कुछ मरग हो जाते राज केले माल्टे ये कुछ लिया पर बाइबल को नहीं होती किसी मिली तो बाइबल में तसली तो लोग जाकर भज के जिदा मरा भज के गले लग होती हालांकि तो मरी भी तो होर मार जाकर तसली नहीं देनी। फिर कह रही लै मत गल लगी नहीं सी, फिर भातियां बन जाती ये भातियां होंगे जी, भातियां नहीं जे छड़ दो रस्मां, ये हिंदुओं की रस्मां जी। ए ना करो, ऐ करो जिस तरह मरियम मगदलीनी ने यीशु दे लिए भलाई की, तुसी भी भलाई करो, तुसी भी किसी के नाल भलाई करो, तुहानू खुदा बरकत देगा। तो जे असी इन्हां रस्मां 'च तेल मेहंदियां ते ये वो सारी रस्मां करते रहांगे ना, तो फिर सुनो असी किसी काम बादशाह 'च जा सकते। जे बादशाह 'च जाना है तो यीशु का नक्शा ही तैयार करो, कलाम तुहाडे कोल है, कलाम पर अमल करो। आए इस बात पर गौर करें कि मरियम मगदली ने और यहूदा अस्कर यहूदी ने क्या किया। इन दोनों को अपने नज़र में रखें, जिसने अच्छा किया वही किरदार आप अपनी ज़िंदगी में रखें। यहूदा ने यीशु को बेच दिया और मरियम मगदलीनी ने कीमती अतर के साथ यीशु को तर कर दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने किसकी तारीफ की? मरियम मगदलीनी की। और यहूदा अस्कर यहूदी से क्या कहा? अगर ये पैदा ही ना होता तो इसके लिए अच्छा। अब उसके बच्चे भीख मांगते हैं, ये दुनिया में जो भीख मांगने वाले हैं उसी की नस्ल में यहूदा अस्कर यहूदी। तो याद रखें यीशु मसीह नजात दहिंदा है। ये छोटा सा बच्चा नहीं है, ये नजात दहिंदा है। इसकी इतनी कदर ना करें कि मरोड़ मरोड़ के पैसे ना दो, इन्हू देने ने तो खुले दिल ना दो, नहीं है तो कोई गल पर दो। अच्छा खुदावंद लई करो ताकि खुदा भी तुहाडी अच्छा करता प्यावे करता रहेगा, उन्हें कभी किसी की हलाकत। और मुकाशे के साथ में ऐ खुदावंद तेरे फैसले रास्त और दुरुस्त है। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। सब साथ झुक जाएंगे। ऐ खुदावंद जलाल के बादशाह तेरी बरकत नासिल हो। आज के कलाम को ये दिलों की तख्तियों पर लिख ले। यहूदा अस्कर यहूदी की तरह तुझे बेचने वाले ना हो, बल्कि मरियम मगदलीनी की तरह तुझ पर खुशबू डालने वाले हो, तुझे नजात दहिंदा मानने वाले हो, तुझे अपना बाप मानने वाले हो, तुझे अपना दूल्हा मानने वाले हो। खुदा बाप
इनको बेदार कर ताकि आज तेरे बदन को जब खाने वाले हैं तो तेरे बदन को खाने के बाद ये जिंदगी पाए, तेरे लहू को पीने के बाद ये जिंदगी पाए। इनके अंदर ईमान की कुव्वत पैदा कर ताकि तुझ में सलामत रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।